everyone, welcome to my channel Simplify Mathematics. In today's video, we'll discuss the chapter 1 of NCERT class 11, that is sets. See, the concept of sets serve as a fundamental part of the present day mathematics. Today, this topic is used in almost every branch of mathematics. So, to understand the relations and functions, whether to understand geometry, sequences, probability, sets basic topic है जो ज़रूर आना चाहिए सबको. So, we'll start with sets and their representations. In everyday life, we speak about the collection of objects. है ना, sets actually होता क्या है? It is particularly a collection of objects, whether it is a pack of cards or a crowd of people or a cricket team, etc. For example, the set of natural numbers, points, prime numbers, etc. or more specifically odd numbers जो कि 10 से लेस हों, या फिर रिवर्स ऑफ इंडिया और द वॉवल्स इन अल्फ़ाबेट and various kinds of triangles, prime factors of 210, or the solution of this equation, quadratic equation. We know that in each of above examples, every we know that in above examples, every set is a well-defined collection of objects in a specified way. That is, for example, the rivers of India and Ganga does belong to this collection. Now, in particularly, we have defined capital N as a set of all natural numbers. Means capital letter से हम हमेशा set को denote करते हैं, जो मैंने आपको एक complex number वाले chapter में भी बताया था. Integers तो हैं तो n है, sorry, integers हैं तो natural number. N stands for set of all natural numbers, Z say all integers, Q say rationals, R say reals, then Z positive to positive rational numbers and positive real numbers and all. See, again, the collection of 5 renowned mathematicians of world is not well defined because there is no criteria. हम उसको determine ही नहीं कर सकते. It is different for person to person. Therefore, this is not a well defined collection. So, a set is always a well defined collection of objects. Now, अब जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं उसको कोई लोग एलिमेंट्स बोल देता है, कोई ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स. सो दे आर ऑल सिनोनिम्स टर्म. नेक्स्ट आर सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया, एन जेड आर. एंड जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, से ए बी सी एंड ऑल. सो अब नेक्स्ट क्या आता है, अगर ए एलिमेंट है सेट कैपिटल ए का, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए, देन उसके लिए हम ये ग्रीक सिंबल दैट इज नोन एज एप्सिलॉन जिसको यूज़ करते हैं. एंड अगर ये इसमें बिलोंग नहीं करता तो एप्सिलॉन के ऊपर ये क्रॉस मार दिया जाता है, यानी इफ दिस बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए. सो अब सपोज अगर मैं कहूँ कि वी इज़ अ सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो ए बिलोंग्स टू वी है, लेकिन जो बी है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू बी. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव. Next, now there are two methods of representing a set. First is roster or tabular form and second one is a set builder form. Well, roster form क्या है? अब roster form में all the elements of the set are listed and the elements are being separated by commas. For example, this example ये जो दिया हुआ है, या फिर और they are enclosed within the braces. For example, set of all positive even positive integers less than 7, तो उसको कैसे लिखेंगे? 2 4 6. अब set of all natural numbers which divide 42 is 1 2 3 and so on till 42. Now in roster form, order of elements is immaterial. It means आप 1 2 3 4 ऐसे लिखें या 1 3 7 21, मतलब आगे पीछे कुछ भी करके लिखें, ऑर्डर मैटर नहीं करता. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज जो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए. दे शुड बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. सिमिलरली द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज ए ई आई ओ यू. अब आप इन पांचों को, Thus, it may be noted that suppose we have a word say school, तो हमें उसके letters को in the form of roster form लिखना है. So हम उसको कैसे लिखेंगे? S
CHOL, इट मीन्स ओ रिपीट नहीं करना है, दैट्स व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और दूसरा, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप पहले दूसरी तरह से भी लिख सकते हो HOLCH, या फिर आप सबसे पहले L लिख सकते हैं, वॉट एवर, ऑर्डर कोई रिलेवेंस नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। In the next definition, that is in the set builder form, all the elements of a set possesses a single common property. Suppose हमें we have a set AEIOU, यानी these 5 are the vowels, तो इनमें एक चीज़ common है, common property क्या है कि they are all, each of them is a vowel in the English alphabets, right? So हम इसको ऐसे लिखेंगे set builder form की form में, that is X such that X is a vowel in English alphabet and no other letter possesses this property. Now it is observed that we describe the element by the set by using a symbol X, तो हम उसको ऐसे क्या बोलते हैं, and which is followed by a colon, ये जो था, ये वाला जो था वो उसको कॉलन बोलते हैं। नाउ आफ्टर साइन ऑफ कॉलन वी राइट दैट कॉमन प्रॉपर्टी, से वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उसको हम लिखते हैं। सो अब इसको जो हमने वी सेट बोला था, दिस वी, हम इसको कैसे लिखेंगे इन द वर्ड्स, दैट इज वी इज रेड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी the set of all x such that for x is a vowel of English alphabet. Similarly, अगर मान लीजिए मेरे पास में सेट A है, उसको कैसे रीड करेंगे, the set of all x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10. So जो numbers हैं वो क्या होंगे इसमें, 4, 5 and 6, उसके बाद 7, 8, 9, these 6 letters. Similarly, हम नेक्स्ट आपके पास में दिया हुआ है ABC, जो हमने ऊपर पिछले में रोस्टर फॉर्म में दिए थे, हम तीनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में बताएंगे, दैट इज ए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ वॉवल, सॉरी y इज़ अ वॉवल इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एंड लास्ट इज सेट ऑफ ऑल z such that z is in odd number. Next comes the first example. Write down the solution set of this equation. See, this is a quadratic equation and we have to solve it out. So these are the trivial factors, that is x minus 1 into x plus 1, this is equal to 0. So x की क्या values आए, 1 and minus 1. So this is the required roster form. Similarly, उसने next example बोला है, write the set x such that x is a positive integer such that the square root of x is less than 40. तो ऐसे कौन से numbers होंगे, आप खुद देख सकते हैं, 1 square is see 1 square is equal to 1 and 2 square is equal to 4 and 3 square is equal to 9. सो हम चलते जाएंगे कब तक, 7 स्क्वायर जो होता है 49 होता है, तो उसने बोला है टिल 40, फाइन, सो इट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 40, सो वो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर. सो 1 2 3 4 5 and 6. नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट द सेट ऑफ ए सच दैट ए कैसा दिया हुआ है 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सबके सब क्या हैं, स्क्वायर्स हैं. सो ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर. सो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेट बिल्डर फॉर्म. नेक्स्ट इज राइट डाउन द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दिस क्वेश्चन हियर एवरीथिंग इज 1/2 2/3, यानी एक नेक्स्ट वाला उससे बड़ा है, n/n+1 की फॉर्म का है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेट बिल्डर फॉर्म, दैट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n/n+1 वेर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n लाइज बिटवीन 1 to 6. नेक्स्ट आर वी हैव टू मैच द फॉलोइंग, जो जो उसमें हैं. सो सिंपली आप यहाँ से देख सकते हो कि फर्स्ट जो है प्रिंसिपल इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो ये हो गया मैच. उसके बाद ज़ीरो, अब ज़ीरो को फिलहाल छोड़ दीजिए. नेक्स्ट क्या आता है आपके पास में 1 2 3 6 9 and 18. नाउ ऑल दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ 18. सो पक्की बात है कि ये भी हो गया मैच. नेक्स्ट आता है 3 and -3. नाउ दीज आर द सेट
ये किसके रूट्स हैं, इस देर के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब बचा क्या, 0, तो इसकी ऑप्शन लास्ट क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, ये आपका सी के बराबर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट कम्स एक्सरसाइज. So we'll start with exercise 1.1. Now the first question said which of the following are sets. So first part में क्या कह रहा है, the collection of all the months of a year starting with the letter J. So इसमें कैसे words आएंगे, एक तो आएगा आपके पास में January, then it's June and then it's July, है ना। So एक particular relation बन रहा है, हमें एक common word मिल रहा है that is starting with J. So ये आपके पास में set आ गया, right. और अगर ये सेट है तो ऑफ कोर्स येस इट इज़ अ। सेकेंड सेज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। सी, अब सपोज कर लीजिए मेरे लिए कोई भी टैलेंटेड राइटर, मान लीजिए मैं सस्पेंस थ्रिलर पढ़ती हूँ, कोई है जो रोमांटिक मूवीज़ पढ़ता हो या सॉरी नॉवेल्स पढ़ता हो, कोई होगा वो एडवेंचरस पढ़ता हो या डिस्कवरी से रिलेटेड। सो हर एक आदमी के लिए अलग अलग 10 राइटर्स होंगे। सो दिस इज़ नो नॉट अ सेट, तो ये एक प्री डिफाइंड चीज़ नहीं है, तो ये सेट। बेस्ट बैट्समैन, सो बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया अगेन अ वेग थिंग, राइट। सो बिकॉज मेरे लिए कोई बेस्ट बैट्समैन ऐसा होगा जिसका रन रेट बहुत अच्छा है, सपोज़ कोई और होगा जिसके लिए होगा कि जो ज़्यादा लंबा खेल के जाए, ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो। सो अगेन दिस इज़ नॉट अ सेट. Now next is the collection of boys in your class. So of course collection of boys in your class, उसमें आपकी क्लास में कोई भी बॉयज़ हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ दी हुई है, तो येस ऑफ कोर्स दिस इज़ अ सेट. नेक्स्ट कम्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन इक्वल टू 100. तो ऑफ कोर्स वो भी है, प्रीडिफाइंड है, 1 2 3 एंड सो ऑन. सो आप टिल 100 तक उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो ये भी आपका सेट है. सो येस इट इज़ अ सेट. नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. ठीक है. सो येस, अब एक पर्टिकुलर आदमी के नॉवेल्स हैं, सो ऑफ कोर्स एक कॉमन चीज़ है उसमें. सो येस इट इज़ अ सेट. नेक्स्ट देन इट कम्स सेवेंथ पार्ट. सेवेंथ पार्ट में कह रहा है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल sorry even integers, right. So yes of course this is again a set. Yes this is a set. नेक्स्ट 8 पार्ट में वो कह रहा है सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन अ चैप्टर. सो ऑफ कोर्स किसी एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं, सो ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो अगेन अ सेट. एंड 9th पार्ट इज सेट ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल्स. सो दिस इज नो, अगेन नॉट अ सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें वो क्या कह रहा है, आपके पास में गिवन है सेट ए. अब हमें डिटर्मिन करना है वेदर दी फॉलोइंग एलिमेंट्स, जो बिलोंग करते हैं वहाँ बिलोंग टू का सिंबल डालना है, विच डज़ नॉट बिलोंग्स टू वहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ करना है. अब ऐसी ध्यान से ए सेट को देखिए, एलिमेंट्स उसमें कैसे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. सो 5 बिलोंग्स टू येस ए. Then 8 does not belongs to A, 0 does not belongs to A, 4 belongs to A, 2 belongs to A, and 10 again does not belongs to A. In the next question, that is question number 3, we have to write the following sets in the form of roster form. Say first क्या है, x is a set such that x is an integer and it lies between -3 to 7. So इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -3 -2 -1, यानी 7 से कम है और 3 से स्टार्ट करना है. सो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6. नेक्स्ट इज x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. सो यानी नेचुरल नंबर कैसा होगा, 1 2 3 4 5. In question number 4, the next part is part C, that is we have given that x such that x is a 2-digit number and sum of its digit is 8. So इस number को आप कैसे लिखेंगे, this is equal to ऐसे 2-digit number जिनका sum 8 हो, यानी 1 plus 7 2 6 3 5 4 4 then 53 62 71. Now अब 08 नहीं था, वो दैट वाज नॉट अ 2-digit नंबर, लेकिन 80 इज़ देयर, सो 80 आप इंक्लूड करेंगे. सिमिलरली द नेक्स्ट पार्ट इट्स सेइंग दैट
x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 60। तो पहले मैं सारे 60 के डिवाइजर्स लिख लूँगी, बट क्योंकि उसने आपको बोला ही है कि प्राइम नंबर, सो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ 2, देन 3, देन 5, उसके बाद 6 आएगा, 6 इज़ नॉट अ प्राइम, एंड देन इट कम्स 10, अगेन दिस इज़ नॉट अ प्राइम। सो ऐसे नंबर्स जो हैं वो प्राइम नहीं है, तो हम सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखेंगे, तो दैट इज़ 2, 3 एंड 5। नेक्स्ट आ गया ई सेट में क्या दिया हुआ है, उसने एक लेटर दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, और हम इसके लेटर वर्ड्स को जो है उसको सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब सी मैंने आपको एक शुरू में ही बताया था कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इट हैज़ नो रेलेवेंस विद द ऑर्डर। ओनली थिंग यू हैव टू सी इज एलिमेंट्स शुड बी डिस्टिंक्ट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो जो एलिमेंट्स उसमें रिपीट होने वाले थे उनको टिक कर लिया। से 7 सॉरी टी इज़ रिपीटिंग ट्वाइस, and R is repeating and O is repeating. So other than these 3 words बाकी सब जो है वो distinct words हैं, तो हम यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं, जब repeat होगा हम उसको छोड़ते जाएंगे। So first is T as it is लिख लिया, then R, then I, then G, अब O यहाँ तक लिख लिया, फिर N भी नॉन रिपीटिंग है लिख लिया। अब O आ रहा है तो आप O छोड़ दीजिए, आप सीधा नेक्स्ट वर्ड पे आइए, इट इज़ M, देन E, अब फिर से T रिपीट हो रहा है नहीं लिखना, R रिपीट हो रहा है नहीं लिखना, एंड Y। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली F दिया हुआ है सेट, उसमें क्या है, यू हैव टू राइट द लेटर्स ऑफ बेटर। अब बेटर में अगेन जो E है दैट इज कमिंग ट्वाइस, है ना, और टी भी रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 6 में से 2 वर्ड्स चले जाएंगे तो 4 वर्ड्स विल बी लेफ्ट। अब सबसे पहला वर्ड बी, देन ई एक बार तो लिखेंगे, इन दोनों में से एक बार टी लिख लिया और आर लिख लिया, दैट्स इट। So in the next question, this is question number 4, we have to write down the following sets in the set builder form. फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, उसने सेट दिया हुआ है 3, 6, 9 एंड 12। सी क्लियरली ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is equal to 3n, यानी x is a multiple of 3 and n belongs to integer c, क्योंकि 0 नहीं है यहाँ पे। एंड दूसरी बात, अब पूरा का पूरा टेबल तो है नहीं, कहाँ तक है, टिल 12, तो हम कहाँ तक n की वैल्यू लेंगे, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 4, राइट। Now next comes, इसमें क्या है, 2, 4, 8, 16 and 32. Now all these are the powers of 2, यानी 2, 2 square, 2 cube and so on. So इसको कैसे लिखेंगे, set of all x such that x is equal to 2 raised to power n, and again n belong to natural numbers, and अब फिर से n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 to 5 कर रही है, बिकॉज 2 raised to power 5 is equal to 32. Next, similarly 5, 25, 125, 6, all these are powers of 5 raised to power n. So इसको फिर से वैसे सेम x such set of all x such that x is equal to 5 raised to power n belongs to natural numbers, and n lies between 1 to, अब यहाँ पे 4 करेगा। सो नेक्स्ट आ जाता है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब ये क्या हो गया, दिस इज सिंपली सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे तो ट्वाइस ऑफ एन है तो हम वही करेंगे, ठीक है। अब लास्ट बचा ये वाला, अब आप देख रहे हैं क्लियरली, दिस ऑल दीज आर स्क्वायर्ड क्वांटिटीज, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। सो आप लिख सकते हो इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स किसके बराबर है, एन स्क्वायर, वेयर एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड एन की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रही है, 1 to 10 के बीच में लाई कर रही है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सी थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड द सेट ऑफ इंटीजर्स whose स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो ऐसे कौन से इंटीजर्स होते हैं, -1,
0 1 दैट इज़ हमें ऐसे इंटीजर्स देने हुज स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4, तो वो कौन सा होगा, सॉरी -2 भी होगा, -1 0 1 एंड 2, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सेट। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, यू हैव टू राइट द लेटर्स इन द वर्ड लॉयल, सो LOYL, सो अब यहाँ पे ओनली L इज रिपीटिंग, रेस्ट वर्ड्स आर ऑल डिस्टिंक्ट, सो कैसे लिखेंगे, LOYA। फिफ्थ पार्ट, E is a set of months in a year not having 31 days, so यानी कौन कौन से इंक्लूड होंगे, वो जो not having 31 days, not 31 days, so उसमें कौन से आएंगे, ऑब्वियसली जैन नहीं आएगा क्योंकि उसमें 31 डेज होते हैं, फेब्रुवरी आएगा, देन मार्च नहीं आएगा, अप्रैल यानी 30 डेज वाले भी इंक्लूड होंगे, मई नहीं आएगा, जून आएगा, जुलाई अगस्त नहीं आएगा, सितंबर आएगा, देन अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आएगा, सो दिस इज द रेलेवेंस, दैट इज फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, सो इसको आप इस सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट इज सिक्स्थ पार्ट, X is a consonant in the English alphabet which precedes K. Fine. So precedes K means K के पीछे पीछे वाले, फाइन। सो F में कैसे, अब कॉन्सोनेंट्स चाहिए, सो वॉवल्स नहीं चाहिए, हम स्टार्ट करेंगे B से, B C, देन D, अब E नहीं आएगा, F G H, I नहीं आएगा, J और K तो है ये, सो दिस इज